there were doubts related to question number 339 to 341. Some students pinged me yesterday, so I will discuss this. Try to understand. This is question related to EMU, equimarginal utility. ध्यान देना. Price given that price of X is rupees 2, price of Y is rupee 1, and income is 12. So you have to spend 12 rupees. You have to spend rupees 12. Also given is the utility schedule of the good X and Y. They have given you MU of X, MU of Y as you increase the consumption from unit 1 to unit 8. We know the formula. ध्यान देना मैं कैसे solve करता हूँ. They have given you the formula. You know, in case of consumer spending or purchasing more than one unit, equilibrium is marginal utility of X upon price of X is equal to marginal utility of Y upon price of Y. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. कैसे? Marginal utility of X upon marginal utility of Y should be equal to price of X upon price of Y. ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा, ये रेशियो इक्वल वाला जो कॉम्बिनेशन रहेगा, that combination can be equilibrium if it results in rupees 12 spending. So py by px sorry, px upon py ढूंढना है. So they have given us price is 2, price of x is 2, price of y is 1. So हमें वो कॉम्बिनेशन ढूंढने जहां पे the ratio of utilities is 2:1. हमें इन सब में वो कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जहां पे रेशियो ऑफ द यूटिलिटीज 2:1 है. सो 2:1 ढूंढना है ना. सो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस मिलेंगे 2:1? लेट मी चेक. अगर मतलब ये 2:1 रेशियो होना चाहिए, वो रेशियो 2:1 होना चाहिए. इफ यूटिलिटी ऑफ x इज 16 तो हमें 8 चाहिए. यूटिलिटी ऑफ y 8 है क्या कोई? यस, ये वाला कॉम्बिनेशन होगा. ध्यान देना, दिस कैन बी वन कॉम्बिनेशन. यहां पे रेशियो 2:1 होगा, यहां पे रेशियो 2:1 होगा. सो कॉम्बिनेशन 1 मैं चाहे तो नीचे लिखता हूं. दिस इज कॉम्बिनेशन ए. ध्यान देना, एक सेकंड. So this is quantity of x, quantity of y. देखते हैं, हमें 2:1 रेशियो चाहिए. mu of x upon mu of y 2:1 चाहिए. क्यों 2:1 चाहिए? बिकॉज रेशियो ऑफ द प्राइजेस इज 2:1. सो कहां पे मुझे 2:1 मिलेगा? दिस कैन बी वन कॉम्बिनेशन. 1 unit of x, 1 unit of x and 4 units of y, 4 units of y. सो एक यूनिट अगर x का परचेस करो तो 16 यूटिलिटी है x की. एंड अगर यू बाय 4 यूनिट्स तो 4th यूनिट की यूटिलिटी 8 है. mu of 4th unit of y is 8. So 16 upon 8 is 2:1. This can be another combination. This can be another combination. Two units of x, combination B. 2 units of x and 5 units of y. Combination C. 3 units of x, 6 units of y. Because 12:6 is 2:1. बराबर? So 3 units of x, 6 units of y. Combination D. 4 units of x and 7 units of y. 10:5. Ratio is 2:1. So 4 units of x and 7 units of y. ठीक है? Then
इसके बाद 5 units of x and 8 units of y. This can be another combination. 8:4 is 2:1. So 5 units of x and 8 units of y. This is the last combination E. 5 units of x and 8 units of y. So you get 5 combinations from this schedule where the ratio of the utilities is equal to ratio of their prices. Ratio of the utilities is equal to ratio of the prices. Ratio of the price is 2:1. तो मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढे जहां पे यूटिलिटीज का रेशियो mu of x upon mu of y is 2:1. Now, so there are A, B, C, D, E, 5 combinations. उसमें से हमें एक ही कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम होगा. इक्विलिब्रियम एक ही होता है. सो अब हमें 5 कॉम्बिनेशन मिले, उसमें से वो कॉम्बिनेशन चाहिए जहां पे he will spend his entire income. So हम एक्सपेंडिचर देखते हैं. If you buy 1 unit of x, so you have to spend 1 multiplied by 2 because x की प्राइस 2 rupees है. x की प्राइस 2 rupees है, y की प्राइस 1 है. So if you buy 1 unit of x and 4 units of y, your spending is 2 plus 4, 6 rupees. If you buy 2 units of x and 5 units of y, your spending is 9 rupees. If you buy 3 units of x, 3 units of x plus 6 units of y, 6 plus 6, 12. If you buy 4 units of x plus 7 units of y, 8 plus 7, 15. And if you buy 5 units of x, 5 units of x, 5 multiplied by 2 plus 8 units of y, 10 plus 18. Now, हमें क्या करना है? कंज्यूमर शुड नॉट अंडरस्पेंड. तो दिस इज अंडरस्पेंडिंग. उसके पास 12 रुपए इनकम है. अगर उसकी इनकम 6 रुपीज होती तो मैं इक्विलिब्रियम इज 1 यूनिट ऑफ x एंड 4 यूनिट्स ऑफ y, बट हिज इनकम इज 12. So this is not equilibrium. Even spending rupees 9 out of 12 is under spending. No. यहाँ पे right, you are spending 100%, so this should be the equilibrium. This is out of budget. You cannot spend 15 rupees. You have just income of 12 out of budget. So this cannot be your equilibrium. This cannot be your equilibrium. So what is your equilibrium? This combination C means 3 units of x and 6 units of y. 3 units of x and 6 units of y. If you purchase, you will spend rupees 12. If you buy 3 units of x, 6 units of y, right, you will spend entire 12 rupees and your satisfaction will be maximum. Accordingly, आपको आंसर देने थे. ठीक है? So ऐसे आप कर सकते हो. क्लियर है? So क्या ढूंढना है? ये वाला. ऐसे कॉम्बिनेशन देखो जहां पे the ratio of the utilities should be equal to ratio of their prices 2:1. I think now it will be clear. मैंने बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर एग्जैक्टली कैसे करें, तो मैंने वो समझाया आप लोगों को कैसे करना है. ठीक है, आगे. सो व्हाट इज माय आंसर? ए कंज्यूमर शुड बाय 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 6 यूनिट्स ऑफ y. डी. टोटल सेटिस्फैक्शन कितना होगा? 3 यूनिट्स ऑफ x. सो फर्स्ट यूनिट ऑफ x से 16 रुपीज, सेकंड यूनिट से 14 रुपीज, थर्ड यूनिट से 12 रुपीज. x से इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा. आई बॉट 3 यूनिट्स ऑफ x. आई बॉट 6 यूनिट्स ऑफ y. 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6. फर्स्ट यूनिट से 11, सेकंड से 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 plus 6. This will be 93. And the amount to be spent, you are spending 6 rupees on commodity X, 6 rupees on commodity Y, 6 and 6 is the answer. ठीक है? जिनको लिखना है लिख सकते हो, जल्दी करो खाली. ठीक है? ठीक है?
सो दिस कैन बी शॉर्टकट। वो कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जहां पे उनका रेशियो, यूटिलिटी का रेशियो, प्राइस रेशियो इतना रहेगा, एंड फिर उनमें से एक कॉम्बिनेशन रहेगा जहां पे यू विल बी स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। कोई कॉम्बिनेशन रहेंगे जिनमें अंडर स्पेंडिंग होगी, कोई कॉम्बिनेशन रहेंगे जिनमें ओवर स्पेंडिंग होगी। वो पॉसिबल नहीं, ओवर स्पेंड हम कर भी नहीं सकते, वी डोंट हैव द बजट। सो हमें वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है जहां पे द एंटायर इनकम इज स्पेंट। ठीक है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द आंसर्स। नाउ आगे, क्वेश्चन नंबर 342। क्वेश्चन नंबर 332, when the price of the both commodities same, price of both the commodities same। तो अभी हमने अगर प्राइस सेम है तो ये वाला फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? अगर प्राइस सेम है तो कहने से, अगर प्राइस सेम है तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, सो mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ y। प्राइस सेम है ना, दोनों की प्राइस सेम है, तो 2/2 इज 1, 10/10 इज 1, 20/20 इज 1। सो अगर प्राइस सेम है तो px अपॉन py विल बी 1। सो इक्विलिब्रियम विल बी mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ y इज इक्वल टू 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mu ऑफ x is equal to mu of y। This can be also my answer. Right. When the price of the both commodities same, the consumer attains its maximum satisfaction when, this is correct। ठीक है, आगे, then a consumer will purchase more goods। अच्छा, yes, a consumer will purchase more good x than the y, he will buy more of x than more of y। मतलब देखो, ध्यान देना, ये मैंने जहां पे मेरा चैप्टर खत्म हुआ तब ये मैंने बोला था, इफ यू रिमेंबर, दिस इज योर बजट लाइन, दिस इज योर आईसी जो टेंजेंट है। इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ आईसी आर सेम, बराबर। इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ आईसी आर सेम। दे आर सेइंग कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ एक्स देन वाई। मतलब कंज्यूमर कहां पे, यहां पे होना चाहिए, इस अपर पोर्शन पे होना चाहिए। टू अटेन इक्विलिब्रियम उसको नीचे आना होगा, नीचे आना होगा, मतलब he has to sacrifice y, he has to right gain x। और यहाँ पे slope of IC is more than slope of budget line। यहाँ पे slope of IC is greater than slope of budget line। Why I said this? Because इस पॉइंट पे जहां पे टेंजेंसी पॉइंट है वहां पे दोनों स्लोप सेम है, एंड वी नो, राइट, वी नो, जैसे हम एमआरएस, लाइक हम जैसे आईसी पे नीचे आते हैं, आईसी पे नीचे आते हैं तो स्लोप डिक्रीज होता है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे स्लोप ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस। उस पॉइंट के ऊपर आईसी का स्लोप ज्यादा होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आई विल से स्लोप ऑफ आईसी विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो आप ऊपर रहोगे, टेंजेंसी के ऊपर रहोगे। टेंजेंसी पे दोनों स्लोप सेम है, टेंजेंसी के ऊपर किसका स्लोप ज्यादा है? आईसी का स्लोप ज्यादा है। टेंजेंसी के नीचे बजट लाइन का स्लोप ज्यादा है, चाहे तो लिखो, ठीक है। आई वॉज इवेल्युएटिंग एवरीथिंग, मेरे हिसाब से द इकोनॉमिक्स विल गेट ओवर बाय 25th ऑफ जुलाई। 25th जुलाई से 31st अगस्त तक पूरा इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का हो जाएगा, एंड देन सितंबर के फर्स्ट 3 वीक्स हमारा बीसीके हो जाएगा, ठीक है। सो मैं कल पूरा टाइम टेबल बना रहा था, मुझे कितना टाइम लगेगा एक्सपेक्टेड। सो जो मेन है, भले वो 60 मार्क्स का है, बट एग्जाम में वो 70-75 मार्क्स को पूछते हैं इकोनॉमिक्स,
एंड बीसी के भले उन्होंने 40 मार्क्स का लिखा है, बट उसका स्कोप कभी 40 मार्क्स के लिए रहता है, वो 30-25 मार्क्स के लिए रहता है, ठीक है। सो आप पकड़ के चलो 3rd वीक ऑफ सितंबर को अपना इको पूरा खत्म हो जाएगा। योर एग्जाम स्टार्ट इन द 2nd वीक ऑफ लाइक 9th नवंबर से स्टार्ट होते हैं, 9th नवंबर। सो यू विल बी हैविंग ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, प्रॉपर 2 मंथ्स बिफोर द एग्जाम्स, ठीक है। इको की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स के जो सिंपल टॉपिक्स है वो एंड में होंगे, एकदम सिंपल, प्रिलिमिनरी वगैरह में सबसे एंड में ले लूंगा। तो अकाउंट्स सितंबर एंड में खत्म हो जाएगा, बट जो मेजर सब चैप्टर्स है वो अगस्त एंड तक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मेजर सब चैप्टर्स जिस जो कंपलसरी है, 10-10 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं वो सब। सो वी आर डूइंग फाइन, सो डोंट वरी एट ऑल। हाँ, हम मेरा सिलेबस अच्छे से चल रहा है, आप लोगों की पढ़ाई भी चलनी चाहिए आगे। बिकॉज आई कीप ऑन इवेल्युएटिंग माई सेल्फ कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा क्या बाकी है। आपसे ज्यादा कभी कभी मुझे ज्यादा टेंशन आता है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे पढ़ो, मैंने इनमें लिखा है व्हेन स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये वाला पार्ट यहाँ पे चाहे तो आप लिख लेना, एक सेकंड, ठीक है। लिख लेना ये पॉइंट। चलो लिखो, मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। एट दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, दिस योर बजट लाइन, एंड सपोज दिस इज योर आईसी। दिस इज द टेंजेंसी पॉइंट, यहाँ पे एट दिस पॉइंट स्लोप ऑफ आईसी is equal to slope of budget line, and we know at all these points slope will be more। जैसे से हम नीचे आते हैं आईसी पे स्लोप डिक्रीज होता है, बराबर। सो आई विल से एट ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। आगे स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, आगे नेक्स्ट। So can I say at upper portion above the equilibrium, above the tangency, slope of IC is greater than slope of budget line, and यहाँ पे इस पोर्शन पे, नीचे वाले पोर्शन पे, नीचे वाले पोर्शन पे स्लोप ऑफ IC is less than slope of budget line below the tangency। So you know as you move downward on a IC the slope decreases, मतलब इस ये स्लोप ऑब्वियसली इसकी इससे कम रहेगा ऊपर वाले से,
एंड ये वाला स्लोप ये नीचे से ज्यादा रहेगा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। सो अब उन्होंने बोला है यू हैव टू सैक्रिफाइस एक्स, आपको वाई को सैक्रिफाइस करना है, एंड अप टू दिस पॉइंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो ओ एम प्राइस है, ओ एम क्वांटिटी ऑफ वाई and OQ quantity of X. This is equilibrium. OM quantity of Y and OQ quantity of X. ये दोनों राइट यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो अबो दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट के ऊपर देखते हो इक्विलिब्रियम के ऊपर, सो यू हैव टू डिक्रीज X, यू हैव टू इंक्रीज Y. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे अगर आप इसके नीचे देखते हो इक्विलिब्रियम के नीचे, सो यू हैव टू इंक्रीज X, यू हैव टू increase Y and decrease X. आप ऊपर जाओगे ना, so what is the question? Question is, a consumer will purchase more of X than Y, means he will buy more and more of X and less of Y when he is above the equilibrium. मतलब slope of IC is more than slope of budget line. Slope of IC is given by, एक second, slope of IC is given by marginal rate of substitution, right, of X and Y is greater than slope of budget line px upon py. बराबर। हमने इक्विलिब्रियम में देखा था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, इफ यू रिमेंबर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन. So it is marginal rate of substitution x and y is equal to marginal rate of substitution of x and y is equal to, right, price of x upon price of y. This is nothing but change in the y upon change in the x. This is price of x upon price of y. I can also write price of x upon price of y as marginal utility of x upon marginal utility of y. ऐसे भी लिख सकते हैं. So अगर मैं इसको इस साइड लेके आता हूं, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, अगर मैं इसको इस साइड लेके आता हूं, इसको, तो व्हाट आई विल गेट, marginal utility of x upon marginal utility of y is equal to price of x upon price of y. ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया, बराबर. एंड दिस इज ग्रेटर देन लिखा है उन्होंने, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में ग्रेटर देन होना चाहिए. सो कैन आई से, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, देखो, इससे मुझे मिल जाएगा ग्रेटर देन होना चाहिए ना. सो मार्जिन ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, इसको शफल करेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई. इसलिए आंसर है उसका डी. आंसर है डी. ठीक है, आगे नेक्स्ट, लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 334. क्वेश्चन नंबर 334. A locus of the constant utility is called as, locus means, what do you mean by locus? Locus means like when multiple points comes together, हम उसको locus बोलते हैं. ये मैथ्स की टर्म है, बराबर ना. when multiple points come together, उसको अगर ज्वाइन करोगे तो उसको locus बोलते हैं. So locus of constant utility, same utility, means iso utility. Indifference curve, indifference curve is called as locus of constant utility. Locus means millions of the points when come together, हम उसको locus बोलते हैं. कर्व इज locus, ऐसे कुछ तो बोलते थे, राइट, वो मैथ्स में था. आगे नेक्स्ट. An indifference curve is
डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आई डू एग्री. डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्केव नहीं है, अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है, वर्टिकल एंड पैरेलल लाइन नहीं है. सो आंसर इज ए. द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एमआरएस मतलब ही स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस मतलब ही स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. आगे नेक्स्ट, एट ए पॉइंट नियर द राइट, अच्छा ये वाला पूछ रहे हो. एट ए पॉइंट नियर द राइट हैंड बिलो कॉर्नर ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस ऑफ एक्स इज, मतलब ये बात कर रहे हैं, दिस इज योर आईसी, बराबर ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ. हाँ, क्या लिखा उन्होंने, एट एन पॉइंट नियर द राइट हैंड बिलो कॉर्नर, ये वाला मतलब कहां पे, यहां पे नीचे. द एमआरएस ऑफ ए कमोडिटी एक्स फॉर ए कमोडिटी वाई इज, जैसे जैसे नीचे आओगे एमआरएस क्या होगा, डिक्रीज होगा, विल बी वेरी लो. अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर देखते हो एमआरएस इज वेरी हाई, नीचे आओगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखोगे ऊपर, तो वहां पे एमआरएस हाई रहेगा. जैसे जैसे राइट साइड पे आ जाओगे नीचे, एमआरएस क्या होगा, डिक्रीज. उन्होंने लिखा एट ए पॉइंट नियर द राइट हैंड बिलो कॉर्नर, एकदम नीचे, द स्लोप विल बी, या एमआरएस विल बी वेरी लो. आगे, बिकॉज इफ यू रिमेंबर हमने ये भी देखा था कि इनिशियली इंडिफरेंस को थोड़ी स्टीपर होती है, एंड लेटर ऑन इट बिकम्स फ्लैटर एंड फ्लैटर एंड फ्लैटर. जितनी वो फ्लैट होती जाएगी उतना उसका स्लोप कम हो जाता है, बिकॉज जब जो एग्जैक्ट फ्लैट होती है उसका स्लोप जीरो होता है, जो एग्जैक्ट फ्लैट होती है उसका स्लोप जीरो होता है, एंड जो वर्टिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है, उसका स्लोप इनफिनिट होता है, स्लोप इनफिनिट होता है. समझ में आ रहा है? सो जैसे आप राइट हैंड साइड पे जाओगे आईसी फ्लैट होती जाएगी एंड उसका स्लोप कम होता जाएगा, मतलब एमआरएस कम होता जाएगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होता जाएगा. आगे नेक्स्ट, यस, as one moves upward towards left along the IC, MRS of commodity X for Y is, as one move upwards towards the left along the IC, the marginal rate of commodity X for Y is, as you move upward, जब आप ऊपर जाओगे, जनरली जब आप ऊपर जाओगे तो यू आर सैक्रिफाइसिंग एक्स, आप एक्स सैक्रिफाइस करोगे एंड वाई गेन करोगे. तो एक्चुअली उन्होंने ऐसे लिखना चाहिए था, एमआरएस ऑफ वाई ऑन एक्स लिखना चाहिए. हम वाई गेन कर रहे हैं एंड एक्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन वी मूव अपवर्ड, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. तो हम गेन क्या कर रहे हैं, वाई, हम सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं, एक्स. एंड मैंने लिखा, बोला था कि जब भी हम एमआरएस लिखते हैं हम गेन फॉर सैक्रिफाइस लिखते हैं. तो यहाँ पे y इज अ गेनिंग, x इज अ सैक्रिफाइसिंग. तो उन्होंने हमें वो नहीं पूछा, उन्होंने हमें बोला एमआरएस ऑफ x फॉर y इज, x फॉर y. मैंने बोला था यू मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, एमआरएस डिक्रीज होता है, बट जब हम नीचे आते हैं तब हम एमआरएस x एंड y लेते हैं, x गेन होता है, y डिक्रीज होता है जब आप नीचे आते हो तो डाउनवर्ड. अगर आप अपवर्ड जाओगे, अपवर्ड, तो इट इज एमआरएस y ऑन x होना चाहिए, एमआरएस y ऑन x होना चाहिए. सैक्रिफाइस x होगा, y गेन होगा. सो अगर आप अपवर्ड जाते हो तो एक्चुअली एमआरएस x एंड y नहीं होता है, y ऑन x होना चाहिए, बिकॉज इन दैट केस आई एम गेनिंग y एंड y एंड आई एम सैक्रिफाइसिंग x एंड x. एंड जब भी हम एमआरएस लिखते हैं हम लिखते हैं गेन अपॉन गेन एंड सैक्रिफाइस, गेन फॉर सैक्रिफाइस ऐसे लिखते हैं. बट उन्होंने x ऑन y लिखा है, तो x एंड y लिखा है, मतलब हमें पता है यहाँ पे ज्यादा रहेगा, यहाँ पे उससे कम रहेगा, यहाँ पे उससे कम रहेगा, यहाँ से उस पे कम रहेगा. सो आई थिंक तो इसका आंसर इंक्रीजिंग होना चाहिए. आप बोलोगे सर आपने बोला था कि कहाँ पे भी जाओ ऊपर नीचे एमआरएस डिक्रीज होता है,
मैंने बोला जब हम नीचे आते हैं तो एमआरएस होता है एमआरएस एक्स ऑन वाई, एंड जब आप ऊपर जाओगे अपवर्ड जाओगे तो एमआरएस रहेगा वाई ऑन एक्स, इट इज नॉट एक्स ऑन वाई। जब आप अपवर्ड जाओगे ना तो यू आर सैक्रिफाइसिंग एक्स एंड यू आर गेनिंग वाई, तब हमने लिखना चाहिए एमआरएस वाई ऑन एक्स। they are not talking about y on x, they are still talking about x on y, so हम उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, इसलिए आंसर इंक्रीजिंग है। बट अगर उन्होंने y on x होता तो मैं डिक्रीज बोलता। एज यू मूव अपवर्ड on a ic curve, mrs y on x is decreasing, x and y is increasing। ठीक है, so इसका आंसर ए है। 349। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, जब ऐसे लिखा जाता है MRS, suppose food for cloth, मतलब you are gaining food, you are sacrificing clothes, you are gaining food, you are sacrificing cloth, and जब ये लिखा है suppose 5, इसका मतलब this is 5/1, this is sacrifice upon gain, means to gain 1 unit of food, to gain 1 unit of food you are sacrificing 5 units of clothes। Try to understand। So ये इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखा है एमआरएस टी फॉर कॉफी, टी गेन हो रही है, कॉफी सैक्रिफाइस हो रही है, एंड दे हैव रिटन इट इज लाइक एग्जांपल 3, तो हम लिखेंगे 3/1 और इट इज सैक्रिफाइस अपॉन गेन, मींस टू गेन 1 यूनिट ऑफ टी, टू गेन 1 यूनिट ऑफ टी यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस 3 यूनिट्स ऑफ कॉफी। इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे होता है, इंटरप्रिटेशन मैटर करेगा। ठीक है, आगे इसलिए जब भी एमआरएस लिखा जाता है इट इज गेन फॉर सैक्रिफाइस, लिखा जाएगा एमआरएस गेन फॉर सैक्रिफाइस, उसका फॉर्मूला रहता है सैक्रिफाइस अपॉन गेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चाहे तो एक इंटरप्रिटेशन मैंने एक बार लिख के भी दिया है, लिख लेना, ये लिखो। ठीक है, चलो लिखते हैं। इट इज एमआरएस is gaining commodity for MRS of gaining commodity of MRS of gaining commodity for sacrificing commodity, ऐसे लिखा जाता है। जिसका फॉर्मूला है सैक्रिफाइस अपॉन गेन, सैक्रिफाइस अपॉन गेन। ठीक है, सो इफ यू आर रिटर्न marginal rate of substitution cloth for food and it is 5, so clothes you are gaining and food you are sacrificing, and it is 5, it means 5/1, it means sacrifice upon gain, बिकॉज हम मार्जिनल ढूंढते हैं ना, 1 गेन करने के लिए कितना सैक्रिफाइस करोगे, 1 गेन करने के लिए कितना सैक्रिफाइस करोगे, सो गेन इज 1। सो इसको मैं बोलूंगा देयरफॉर टू गेन 1 unit of food, yeah, 1 unit of cloth, consumer sacrifices 5 units of food। ठीक है, 5 units of food। ठीक है,
So this is example to understand the interpretation. ऐसे लिखा है, marginal rate of substitution coffee for tea is 3. So coffee you are gaining, tea you are sacrificing. 3 means 3/1. रेशियो रहता है sacrifice upon gain. Therefore I can write to gain 1 unit. किसका? कॉफी का. You are gaining coffee ना. To gain 1 unit of coffee, consumer sacrifices 3 units of tea. This is the interpretation. ठीक है, this is the interpretation. Clear है? आगे इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए. आगे तो उन्होंने यहाँ पे लिखते टाइम x on y लिखा है. एक्चुअली इफ वी आर मूविंग अपवर्ड, इफ आर मूविंग अपवर्ड तो हम x सैक्रिफाइस करते हैं एंड y गेन करते हैं. तो एक्चुअली हमने ढूंढना चाहिए MRS y on x, MRS of y for x ढूंढना चाहिए, y for x, not x for y. अगर y for x लिखते तो मैं मेरा आंसर डिक्रीजिंग होता, बट दे आर टॉकिंग जस्ट अबाउट x for y, तो मैं बोलूंगा इंक्रीज होता है, बिकॉज आप कर तो वही है आपकी. तो आप ऊपर देखोगे तो उस मतलब ऊपर जैसे जाओगे तो x फॉर y इंक्रीज होता रहेगा एंड y फॉर x डिक्रीज होता रहेगा. क्या बोला? जब आप ऊपर जाओगे x फॉर y इंक्रीज होगा एंड y फॉर x डिक्रीज होगा. आगे ए हायर IC denotes higher satisfaction. ये क्या अब याद होना चाहिए. Which of the following is not a characteristics of indifference curve? Not a characteristic of IC. 5 characteristic मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान देना. It is downward sloping to right. It is convex to the origin. No two ICs can intersect each other. No IC can intersect each of the or touch either of the axes. And the fifth, higher IC represents higher satisfaction or higher utility. First, downward sloping to the right. Right, it is convex to the origin. 2 ICs cannot intersect, means one combination can lie only on one IC. It cannot lie on 2 ICs. Fourth, right, no IC can touch either of the axes. And fifth, right, higher the IC, higher the satisfaction. Downward sloping to the right, yes. Convex to the origin, yes. Intersecting at one point. Oh, no, they cannot intersect. Not the characteristics. Again, IC theory assumes that bias can measure the satisfaction. No, bias cannot measure, but bias can compare. Bias can identify preferred combinations of goods. Yes, generally, जिस combination में ज्यादा units रहेंगे, buyer will go for that combination. More the commodity, more the quantity, more the satisfaction, and consumer will prefer to have that. ठीक है? So identify preferred combinations of goods. Prices of the goods are equal? No, not necessary. They can be equal, they cannot be equal, right? So वो illogical है, C is illogical. Then an IC shows all the combinations of 2 commodities which an IC shows all the combinations of 2 commodities which give the same level of satisfaction to consumer. Yes, I do agree. Represent the highest satisfaction to the consumer? No. An IC, एक IC खाली क्या दिखाती है? Use the combinations which give the same utility, same satisfaction. Gives different level of satisfaction? No. आगे, the slope of IC tends to diminish as we move down the curve, means MRS is decreasing. That is the reason why IC has a convex shape and it is downward sloping. MRS X for Y, X of Y is change in the Y upon change in the X. उल्टा X for Y लिखा है तो change in the Y upon change in the X. Y for X लिखा है
तो चेंज इन द एक्स अपॉन चेंज इन द वाई, ठीक है। सो आंसर इज सी। तो ये आप गेन कर रहे हो, एक्स आप गेन कर रहे हो एंड वाई आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, एंड माई रेशियो इज सैक्रिफाइस अपॉन गेन, माई रेशियो इज सैक्रिफाइस अपॉन गेन। एक गेन करने के लिए आप कितना सैक्रिफाइस करते हो, एक यूनिट गेन करने के लिए आप कितना सैक्रिफाइस करते हो। आगे देन ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये बजट लाइन का स्लोप है, ठीक है। एन इंडिफरेंस मैप, इन ए इंडिफरेंस मैप हायर आईसी इंडिकेट्स हायर satisfaction, lower IC indicates lower satisfaction. MRS is determined by satisfaction level of the consumer, income of the consumer, taste of the consumer, and preferences of the consumer. MRS is determined, margin rate of substitution is satisfaction. Satisfaction level should remain same. MRS is determined by satisfaction level of the consumer. ठीक है. Then Q preference satisfaction of the consumer. Yes, हम margin rate of substitution मतलब satisfaction की बात करते हैं. आगे a set of ICs drawn on a graph like this. Set of ICs represent taste and preferences of the consumer. So it is called as IC map. Indifference curve map. ठीक है. आगे and IC is convex to the origin because of diminishing MRS. Diminishing marginal productivity, no. ये प्रोडक्शन में आएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिव्स डाउनवर्ड स्लोपिंग MU कर्व. डिमिनिशिंग मार्जिनल कॉस्ट MC इंक्रीज होती है, नो, ठीक है. ये अभी नहीं पता चलेगा, जब हम कॉस्ट चैप्टर करेंगे तब समझेगा. आगे चाहिए तो जिनको स्लोप निकालने यहाँ पे निकाल के रखो. डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ऐसे होती है, जिनको पता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के उनके लिए. दिस इज योर MP, मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल कॉस्ट नाइकी, मार्जिनल कॉस्ट इज नाइकी शिफ्ट, एंड ये तो सबको पता है. आगे IC कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. जिनको ये हुआ है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, ये शेप्स रहेंगे. इफ यू रिमेंबर, marginal rate of substitution indicates slope of, obviously MRS indicates the slope of indifference curve, and ratio of the prices indicates the slope of budget line. आगे टोटल यूटिलिटी का स्लोप क्या दिखाता है, टोटल यूटिलिटी का स्लोप MU indicates slope of the total utility, ठीक है. आगे सो बजट लाइन का स्लोप रहता है P बाय ये, इसका इंडिफरेंस कर्व का रहता है MRS X एंड Y, एंड टोटलिटी का स्लोप रहता है MU. आगे द स्लोप ऑफ IC इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कर्व. यस, हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, ऊपर ज्यादा रहेगा, नीचे कम रहेगा. करेक्ट. स्लोप इज मेजर्ड बाय MRS व्हिच फॉल्स. यस, सो आंसर इज A and C both. A and C both. आगे 361. Only one IC will pass through a given point on indifference curve implies that only one IC will pass through given point on IC map. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला two ICs cannot intersect means one point cannot be part of two ICs. One combination can be part of only one IC. ठीक है. So only one combination can lie. One combination can lie only on one IC. Yes. One combination can lie in two ICs. No. One combination can lie on as many as ICs. No. It is A. ठीक है. Consider the map. The satisfaction derived from the combination is. बोलो ABCD. चलो टाइप करो जल्दी. ये हमने किया है. Combination A, combination B, combination C. What is the answer? What is the answer? What is the answer?
ए बी सी डी सो गए सब. डी. So, considering the math, the satisfaction derived from the combination is A is greater than B, B is greater than C. No, actually C is greater than B, B is greater than A. So what is the answer? D. A consumer may not be in equilibrium at a point C or D because he is not in equilibrium at a point C or D because C and D lies on lower IC, E lies on higher IC, and C, D and E कॉस्ट द सेम. इन तीनों की कॉस्ट सेम है, पैसा तो सेम देना है आपको तीनों के लिए. सी परचेस करो, ई परचेस करो, डी कॉम्बिनेशन परचेस करो, देना तो पैसा सेम ही है बट सेटिस्फैक्शन अलग अलग है. ई पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा देन सी एंड डी, एंड देयरफॉर आई विल से ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. A consumer may not be in equilibrium at point C and D because at point C and D ये दोनों इक्वल नहीं होते. So this is not the answer. The whole income is not spent. Yes, आप पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो because you are on budget line. So this is not correct. This is not correct. ये यहाँ पे हो रहा है. Point E पे MRS is equal to ratio of the prices. Slope of budget line is equal to slope of IC. The whole amount is not spent. This is wrong. Whole amount कहाँ पे यहाँ पे spend नहीं हो रही है. Below the budget line. ठीक है. So this is also wrong. Why? Because you are in budget line means you are spending entire amount. Point E gives higher level of satisfaction with the same expenditure as on C and D. Perfect. खर्चा तो तीनों के लिए सेम करना पड़ रहा है but E gives more satisfaction and therefore C and D is not equilibrium. Answer is C. अब the sufficiency of income ऐसे कुछ नहीं. On an indifference curve, MRS falls when moving upward, moving downward, at the middle, or none of the above. MRS falls when you move downward. You move downward. Again, should a consumer move upward along an IC, his total utility. अगर कंज्यूमर नीचे आता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी भी सेम रहेगी. अगर वो ऊपर जाएगा तो भी यूटिलिटी सेम रहेगी बिकॉज दिस इज आइसो यूटिलिटी कर्व. कोई भी कॉम्बिनेशन उठाओ इट विल गिव यू सेम सेटिस्फैक्शन एंड देयरफॉर दिस इज आइसो यूटिलिटी कर्व. सो वो नीचे जाए या ऊपर जाए ऑन ए गिवन आईसी, एक ही आईसी पे ऊपर नीचे करेगा तो सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम. शुड ए कंज्यूमर मूव अपवर्ड अलोंग द आईसी, हिज टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. हाँ, अगर वो अपवर्ड मूव होता है, अपवर्ड मतलब ऊपर वाले आईसी पे मूव होता है, आईसी ही चेंज करता है वो, तो सेटिस्फैक्शन और टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज. अगर वो नीचे वाले आईसी पे शिफ्ट होता है तो टोटल यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन विल डिक्रीज. बट सेम आईसी पे किधर भी जाए, ही इज इंडिफरेंट, हिज सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम. All the points on the same IC represents, all the points on the same IC represent constant utility, equal satisfaction. 367. IC approach deals with one commodity, two commodity, many commodities, no commodity at all. जो ये आंसर लिखेगा वो पागल है. It is two commodities. One commodity वाला क्या है? DMU. मेनी कम्युनिटीज के लिए क्या है? EMU. उसमें 2 और मोर देन 2 हो सकता है. 2 कम्युनिटीज के लिए या तो EMU चल जाएगा अगर आप कार्डिनल अप्रोच फॉलो कर रहे हो, अगर ऑर्डिनल है तो IC चल जाएगा. EMU विल डू बोथ 2 कम्युनिटीज और मेनी कम्युनिटीज. IC ओनली 2 कम्युनिटीज एंड एज पर ऑर्डिनल हिक्स एंड अलेन, याद रखना हिक्स एंड अलेन. इफ 2 गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, IC will be linear because in case of 2 perfect substitutes MRS is a constant and अगर कोई स्लोप कांस्टेंट है मतलब उस लीनियर कर्व रहेगी, लीनियर लाइन रहेगी, उसमें स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है एट एवरी पॉइंट, देयरफॉर लीनियर. राइट एंगल किसका होता है? ऐसे राइट एंगल. दिस इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. लिख लेना वहां पे perfect complementary goods. Convex to the origin
right? Not perfect, not perfect substitute or perfect complementary goods, not perfect substitutes or imperfect substitute लिखो, imperfect. Generally goods are not perfect substitutes and therefore we get convex to the origin. Imperfect substitute. उधर लिखते जाओ, बाकी भी आंसर्स पता होनी चाहिए. राइट एंगल किसकी रहती है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की. राइट एंगल कर्व किसकी रहती है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की. कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इन अदर गुड्स. कोई अगर सब्स्टिट्यूट नहीं तो भी चल जाएगा, ठीक है. लीनियर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. कर्वी लीनियर मुझे नहीं पता कर्वी लीनियर क्या होती है, ठीक है. ए डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर आईसी, डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर आईसी लीनियर है, like this. It is the goods x and y are perfect substitutes and their MRS is a constant. A downward sloping linear IC that in MRS is constant. ठीक है, आगे एंड लिख लेना ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. MRS can never be zero. MRS can never be zero. आगे. In case of two perfect substitute goods, IC will be two perfect substitute goods. It is a straight line. L-shaped. L-shaped आप इसको ये बोल सकते हो, perfect complementary goods. ये वाला right angled, ये आप L-shaped बोल सकते हो, perfect substitute. U-shaped कोई नहीं रहेगा, S-shaped कोई नहीं रहेगा. आगे. When an IC is L-shaped, then two goods are perfect complementary goods. Perfect substitute में linear, perfect substitute. ये perfect substitute ये पता नहीं, ये डबल रिपीट हुआ है, वैसे भी ये आंसर नहीं है हमारा, ठीक है. Just don't say just complementary goods. Right angled L-shaped curve है, convex to the origin, तो वो रहते perfect complementary goods. Dash that depicts the complete scale of the consumer taste and preferences. MC map, IC map. ठीक है. One combination can lie on only one IC means two ICs cannot intersect. Only one IC will pass through that point. Two ICs cannot pass through, or more than two ICs, more than one ICs cannot pass through that point. Two ICs can pass through the point, no. वो intersection हो जाएगा, that is not possible. As many ICs can pass through, no. Answer is एक पॉइंट एक ही आईसी पे रहेगा, मतलब एक पॉइंट से एक ही आईसी पास होगी. आगे. When the quantity of one good is increased in combination, x increase कर रहे हो आप, the quantity of the other is reduced, दूसरा reduce होना ही चाहिए in order to maintain satisfaction, same level of satisfaction. अगर दूसरा कम नहीं करोगे, खाली x increase कर रहे हो, y उतना के उतना ही है. Now you have more, जो combination मिलेगा, that will have more number of units and therefore satisfaction will increase. Try to understand. हमें क्या करना है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रखनी है, तो जब हम x इंक्रीज करेंगे y को डिक्रीज करना ही पड़ेगा. दिस मींस IC इज नेगेटिवली स्लोप्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग. आगे, ठीक है. अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है बोथ द कम्युनिटीज इंक्रीज होते हैं, बोथ द कम्युनिटीज इंक्रीज होते हैं, तो इट इज कॉनकेव, बट ऐसे होता नहीं, ठीक है. आगे, नेक्स्ट. When combination on IC do not represent same level of satisfaction, when the combination on IC do not represent same level of satisfaction, it means IC is positively sloped, horizontal straight line, vertical straight line, or like all of the above line. देखो, when combinations of IC do not represent same level of satisfaction, if we have to represent same level of satisfaction,
it should be negatively sloped. Negatively sloped, convex to the origin में you will have same level of satisfaction. और वो बोल रहे हैं कि हमें ऐसी कर्व चाहिए जहां पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, मतलब हमें ये कर्व छोड़ के बाकी कोई भी कर्व चलेगी. लाइक पॉजिटिवली स्लोप्ड, इसमें क्या हो रहा है? पॉजिटिवली स्लोप में बोथ इंक्रीजेस, एक्स ऑल्सो इंक्रीजेस, वाई ऑल्सो इंक्रीजेस, या तो एक्स डिक्रीजेस, वाई ऑल्सो डिक्रीजेस. पॉजिटिव रिलेशन है. यहाँ पे क्या होता है? निगेटिव रिलेशन होता है बिटवीन कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई. इफ यू इंक्रीज एक्स यू डिक्रीज वाई, इफ यू डिक्रीज एक्स यू विल इंक्रीज वाई, राइट? इंडिफरेंस कर्व बनेगी एंड सेम सेटिस्फेक्शन रहेगा. बट अगर पॉजिटिवली स्लोप्ड है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, तो you right, as x increases y will also increase and that will give you more quantities and consumer will prefer that combination. Consumer will not be indifferent. So यहाँ पे positive slope satisfaction change होता रहेगा as you move upward, increase होता रहेगा as you move upward, satisfaction decrease होता रहेगा as you move downward. Satisfaction does not remain same. Horizontal straight line, क्यों satisfaction change होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एवरी कॉम्बिनेशन में अब कोई भी कॉम्बिनेशन उठाओ, यू हैव मोर ऑफ एक्स एंड सेम ऑफ वाई. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में यू हैव मोर ऑफ एक्स एंड सेम ऑफ वाई. वाई तो सेम रहेगा और एक्स इंक्रीज हो रहा है. एक्चुअली क्या होना चाहिए था? एक्स इंक्रीज होता है तो वाई डिक्रीज होना चाहिए. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई सेम ही है. सो एवरी कॉम्बिनेशन विल गिव यू मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन जैसे जैसे आप राइट पे जाओगे, एंड जैसे से आप लेफ्ट पे आओगे कॉम्बिनेशंस विल गिव लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन. देयरफॉर यहाँ पे सेम यूटिलिटी नहीं है. वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, अब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम क्या है? यू हैव सेम ऑफ एक्स, एक्स सेम है बट मोर ऑफ वाई. एवरी कॉम्बिनेशन जैसे आप ऊपर जाओगे वाई इंक्रीज होगा बट एक्स सेम रहेगा. हमें क्या चाहिए? अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होना चाहिए, राइट? जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में एक्स इंक्रीज होगा वाई सेम रहेगा, एक्स डिक्रीज होगा तो भी वाई सेम रहेगा. वर्टिकल लाइन में वाई इंक्रीज होगा एक्स सेम रहेगा, वाई डिक्रीज होगा एक्स सेम ही रहेगा. मतलब उसमें इनवर्स रिलेशन नहीं है, उसमें सेटिस्फैक्शन चेंज होता रहेगा विथ चेंज इन एवरी कॉम्बिनेशन ऑन सेम कर्व, एंड देयरफॉर राइट दे डू नॉट represent same level of satisfaction. So AB same level of satisfaction represent नहीं करती, BB same level of satisfaction represent नहीं करती, CB same level of satisfaction represent नहीं करती. Therefore all of the above. क्यों same level of satisfaction नहीं है? Because same level of satisfaction रखना है तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज ही करना पड़ेगा, या एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज ही करना पड़ेगा. इसमें दोनों इंक्रीज होते हैं या दोनों डिक्रीज होते हैं. इसमें एक इंक्रीज होता है दूसरा सेम रहता है, या एक डिक्रीज होता है दूसरा सेम रहता है. सिमिलरली यहाँ पे भी y इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, x विल रिमेन सेम. y इंक्रीज होगा तो x डिक्रीज होना चाहिए, नहीं हो रहा है. y डिक्रीज होगा तो x इंक्रीज होना चाहिए, नहीं हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयरफॉर A, B एंड C आर द कर्व्स जहां पे satisfaction will change, will not remain same, and therefore answer is all of the above. बच्चे लिख के आते हैं पॉजिटिवली स्लोप, बिकॉज उनको पता होता है ये निगेटिव स्लोप है तो पॉजिटिव स्लोप में सेटिस्फेक्शन चेंज होगा. बट दे डोंट अंडरस्टैंड बी एंड सी में भी सेटिस्फेक्शन चेंज होता रहेगा, बिकॉज कॉम्बिनेशन में एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज नहीं होता है. आगे नेक्स्ट 376 dash dash is a graphical representation of all possible combination of the two goods which can be purchased given income. अच्छा, graphical representation of मतलब कर्व के बारे में बात करें. all possible combinations of two goods which can be purchased with given income and the prices. If they have given you the prices of commodity X and commodity Y and they have given you income, with that अगर बजट लाइन के लिए तीन चीजें चाहिए. क्या? प्राइस ऑफ कमोडिटी X, प्राइस ऑफ कमोडिटी Y and the income available. अगर ये तीन चीजें है, and if you draw them, right, you will get budget line. ठीक है? आगे yes,
बजट लाइन को प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन भी बोला जाता है, बजट लाइन को कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन भी बोला जाता है, ऑल ऑफ द अबव। ये अलग अलग नाम है बजट लाइन के, ये मॉड्यूल में नहीं है बट टैक्समैन में उन्होंने दिए है। सो बजट लाइन कैन बी कॉल्ड एज प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर ऑल ऑफ द अबव है। एक बार चाहिए तो कंफर्म करो जिनके पास टैक्समैन है, बट जितना मुझे पता है आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज बजट लाइन के अलग अलग नाम है। तो लिख लेना, बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस लाइन तो है, ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन और कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन। एक बार कंफर्म करो जिनके पास टैक्समैन है। देखो आई कैन प्रोवाइड यू द आंसर्स, बट जब डिस्कस करते हैं ना तो दैट राइट वी ट्राई टू लिंक मेनी थिंग्स, एंड मैं खाली क्वेश्चन के आंसर नहीं देता, मैं उसको लिंक भी करता हूं, मैं उसको समझाता भी हूं, आप उसको कैसे देख सकते हैं, एंड आई गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन। ठीक है, सो प्राइस लाइन के अलग अलग नाम है ये। इफ जब भी ऑल ऑफ द दिखता है ना, पूरे पॉइंट्स पढ़ते जाओ, ऐसे मत करते जाओ। जनरली हमें बजट लाइन पता है, बजट लाइन लिख के हम आगे चलते हैं, बट हम पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ते। इफ हाँ डी है, राइट राइट। देखो मॉड्यूल में ये नाम नहीं लिखे कि प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन, विद दैट इनकम व्हाट यू कैन कंज्यूम, विद दैट इनकम व्हाट यू कैन कंज्यूम, इसलिए उसको बोला जाता है कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन। आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिलते हैं। बजट लाइन विल टेल यू ना कि व्हाट इज योर पॉसिबिलिटीज आर, आप क्या कंज्यूम कर सकते हो, कितना कंज्यूम कर सकते हो दोनों गुड्स। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन। ठीक है, इफ कॉम्बिनेशन इज बिलो द बजट लाइन, बजट लाइन के नीचे है, इट इज अंडर स्पेंडिंग, बजट लाइन के नीचे अंडर स्पेंडिंग, ऊपर आउट ऑफ बजट, ऑन द बजट लाइन डॉट बजट। इफ combination is below the budget line, it indicates that there is underspending by consumer. Obviously, all combination that lie on one budget line are, कोई भी combination उठाओ, cost the same to the consumer. Unaffordable by consumer, no. Affordable by consumer, yes. Attainable by consumer, yes. Affordable भी है, attainable भी है, दोनों का मतलब एक ही है, B and C. Each point on the budget line shows the ratio of change in MU. बजट लाइन का रेशियो क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। इट ऑल्सो मीन्स मार्जिनल ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल ऑफ वाई। वाई? बिकॉज हमें ईएमयू में ये फॉर्मूला मिला था, ईएमयू में ये फॉर्मूला मिला था, ईएमयू में हमने देखा था रेशियो ऑफ द प्राइजेस इज इक्वल टू रेशियो, जब आप इक्विलिब्रियम की बात या आप वो फॉर्मूला देखोगे, इट इज ratio of the prices is equal to ratio of the utilities. So I can say the ratio of change in MU, change in MU बोल रहे हैं, no, ऐसे है क्या, ऐसे क्या, ये change in MU मतलब ये बोल रहे हैं वो, no, I just need MU, not change in MU. change in MU concept है ही नहीं, change in the TU is a concept, change in MU concept नहीं है, so this is not the answer, ये change की वजह से। रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, यस, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नो, इट डज नॉट टॉक, each point on the budget line does not talk about marginal rate of substitution, it talks about ratio of the prices. So answer is B. Answer B and C कब होता पता है, at a tangency point. At a tangency point the slope of budget line shows ratio of the prices between the two commodities and MRS. each point लिखा है, every point on budget line is not equilibrium, only this point is in equilibrium. ठीक है, आगे, so answer is B. A shift of the budget line when the prices are constant is due to, जब prices same है but आप shift होते हैं ऊपर या नीचे, it is because change in the budget or change in the income, change in the income. ठीक है, आगे, slope of the budget line is indicated by px upon py. ठीक है, then a budget line of a consumer, the budget line of a consumer in
Analysis of IC is, in analysis of IC is, budget line is a vertical straight line, no. Horizontal straight line, no. Straight line sloping downward towards right. ऐसे होगी ना, ऐसे थोड़ी होगी ऊपर, नो. ठीक है. द बजट लाइन इज नॉट नोन एज, मतलब बाकी चीजें, these are the different names of the budget line. Consumption possibility curve, yes. Price line, yes. Price opposite line, yes. Is utility line, no. ये is नहीं है, ISO है. is utility line है, वो ISO utility line है. वहां पे टाइपिंग एरर हुई है. That is ISO utility line. ISO utility line means IC. ISO utility line means indifference curve. बजट लाइन के तीन नाम है, प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व. ठीक है. दिस इज आईसो, दिस इज आईसी एक्चुअली. सो आईसी एंड बजट लाइन आर डिफरेंट. आईसी एंड बजट लाइन आर डिफरेंट. आईसी क्या दिखाती है? ऑल दोस कॉम्बिनेशंस व्हिच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. बजट लाइन क्या दिखाती है? ऑल दोस कॉम्बिनेशंस व्हिच कॉस्ट यू सेम. आईसी दिखाती है all those combinations of the two commodities X and Y which give same satisfaction. And budget line दिखाती है all those combination of good X and Y which cost you same. आपको सेम खर्चा करना पड़ेगा, वो बजट लाइन दिखाती है. यस, ये भी मैंने किया था. रेफर द फॉलोइंग फिगर. दिस फिगर डिनोट्स, देखो, I cannot say change in income. I cannot say change in the income because this point is common. मैंने बोला था चेंज इन इनकम में दोनों पॉइंट चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉइंट चेंज हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस फिगर डिनोट्स चेंज इन इनकम, नो. आप ऊपर गए हो. ठीक है. चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ, अरे गुड एक्स की तो प्राइस सेम ही होगी क्योंकि एक्स उतना ही है जितना पहले था. इट इज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई. आप ऊपर जा रहे हो तो हम बोलेंगे वाई सस्ता हुआ है. अगर आप नीचे आ रहे हो तो हम बोलेंगे वाई महंगा हुआ है. ठीक है. सस्ता हुआ है तो क्या होता है? आई कैन बाय मोर ऑफ वाई. अगर वाई महंगा हुआ होगा तो आई कैन बाय लेस ऑफ वाई. चेंज इन द प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स एक्स एंड वाई, नो. द बजट लाइन इक्वेशन इज दिस. बजट लाइन इक्वेशन इज प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ वाई. m is money, is your money. ठीक है. जो मैंने आंसर शेयर किया ना उसमें कोई एक दो जगह पे रॉन्ग भी है, तो इसलिए उसमें शायद से ए आंसर आया है. द आंसर इज सी. ठीक है. बजट लाइन आगे एक्चुअली ऐसे भी दिखा सकते थे आप. कैसे? प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई, सॉरी क्वांटिटी ऑफ वाई is less than or equal to budget. Less than or equal to your expenditure. इक्वेशन पूछा है ना, तो इक्वल टू चल जाएगा या वन में से लेस देन और इक्वल टू बजट. एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बजट और लेस देन द बजट, ऐसे भी चल जाता. रेफर द फॉलोइंग फिगर. व्हाट चेंज द बजट लाइन शोज. एक तो पता चल रहा है कि y की प्राइस चेंज हो रही है एंड x की भी प्राइस चेंज हो रही है. देखते हैं. प्राइस ऑफ x फॉल्स एंड प्राइस ऑफ y राइजेस. जो डॉटेड लाइन है ना, दैट इज अ न्यू लाइन. डॉटेड लाइन है वो न्यू लाइन है. देखते हैं. डॉटेड लाइन इज अ न्यू लाइन. ठीक है. सो नाउ यू कैन बाय मोर ऑफ y. यू कैन बाय मोर ऑफ y. more of y and you can buy less of x. x कब कम परचेस करोगे? when price of x increases. and y कब ज्यादा परचेस करोगे? when y सस्ता हो जाएगा. so price of x rises and price of y falls. ठीक है. आगे then refer the following question. अच्छा, a consumer wants to buy two goods x and y. दो गुड्स परचेस करना चाहता है x and y. The prices of two goods are 4 and 5 respectively.
अगर आपको एक एक यूनिट लेना है तो आपको 9 रुपए चाहिए, एक एक यूनिट लेना है तो 9 रुपए चाहिए। द कंज्यूमर्स इनकम इज 20, कंज्यूमर्स इनकम इज 20। आगे देखते हैं, इफ द कंज्यूमर स्पेंड्स एंटायर मनी इनकम टू बाय ओनली गुड एक्स, ओनली गुड एक्स, 20 का 20 एक्स के लिए डाला उसने, 20 का 20 एक्स, हाउ मेनी यूनिट्स ही कैन बाय? अरे ये छोटे बच्चे बोल देंगे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के, 4, ही कैन बाय 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 units of X he can buy with his income 20 and the price of X is 4. 20 divided by 4. If the consumer spends entire income to buy only good Y, so 20 upon Y ki price 5, he can buy 4 units. The slope of the budget line is price of X upon price of Y. 4 upon 5, 0.8. 0.8. Then a consumer can buy 6 units of good X and 8 units of good Y if he spends his entire income. He can buy 6 units of good X and 8 units of good Y if he spends his entire income. The prices of two goods are 6 and 8 respectively. What is his income? 6 multiplied by 6 by 6 units of X at the rate of 6, 8 units of Y at the rate of rupees 8. 36 plus 64 is 100. 36 plus 64 100. Income is 100. ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, फिर भी बच्चों को आता नहीं, पता है। रवि कंज्यूम्स, लास्ट के 10 से क्वेश्चन बाकी है। रवि कंज्यूम्स एप्पल्स एंड बनानास whose prices are rupees 6 and 3 per unit respectively. Apple and banana 6 and 3. If he is in the state of equilibrium, the value of marginal rate of substitution. If a consumer is in equilibrium, MRS is equal to slope of budget line Px upon Py. Px upon Py बराबर। सो यू नो, या तो आप 6/3 ले लो, अगर वो आंसर है तो चलेगा, बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली विच इज एक्स एंड विच इज वाई। एक्स एक्सिस पे कौन सा है, एप्पल है बनाना, आई डोंट नो। प्राइस ऑन एक्स एक्सिस अपॉन प्राइस ऑन वाई एक्सिस, ऐसे हम करते हैं। या तो आपका आंसर 3/6 हो सकता है, दोनों में से जो भी अवेलेबल है, या तो 2 रहेगा या 0.5 रहेगा। आंसर 2 है तो आई विल टेक 2। दोनों में से एक आंसर हो सकता है, बिकॉज आई डोंट नो एप्पल एक्स एक्सिस पे है या बनाना एक्स एक्सिस पे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे सो द वैल्यू ऑफ MRS is 2. The budget constraint line is a result of price of X, price of Y, income of the consumer, all of the above. तीनों चाहिए तो हम बजट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 393. The consumer will maximize his satisfaction and will be in equilibrium where budget line is tangent to IC. फर्स्ट ही आंसर है, बजट लाइन इज टेंजेंट टू IC. बजट लाइन क्रॉसेस IC, नो, इंटरसेक्शन नहीं, टेंजेंसी होना चाहिए। बजट लाइन डज नॉट टच IC, तो टेंजेंसी कैसे होगी? आंसर इज ए। हाउ मेनी इंडिफरेंस कर्व्स कैन टच द प्राइस लाइन? कैन टच बोला है, टच, इंटरसेक्ट नहीं बोला है, ओनली वन। इंटरसेक्शन अलग एंड टच अलग, जस्ट किस करके निकालना ऐसे। इसको हम टच बोलेंगे। एंड अगर प्रॉपर ऐसे होके जाएगी तो ये टच नहीं बोलेंगे, इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ओनली वन IC कैन टच द बजट लाइन। ठीक है, MRS X on Y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, वेयर ये फॉर्मूला है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे यहां पे लिख लेना प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल, जिनका हुआ है उनके लिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। प्रोड्यूसर इज एट इक्विलिब्रियम। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन कर्व हमने देखी थी, ठीक है। प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व, उसमें ये फॉर्मूला मिलता है हमें। कंज्यूमर में फॉर्मूला मिलता है ये। कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम व्हेन
MRS, margin rate of substitution x on y is equal to price of x upon price of y. Producers इन डिफरेंस करो करेंगे, प्रोडक्शन चैप्टर में करेंगे, अभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कर रहे हैं. नेक्स्ट चैप्टर अपना प्रोड्यूसर बिहेवियर है, उसमें हम स्टडी करेंगे मार्जिन प्रोड्यूसर्स इन डिफरेंस कर्व, एंड उसमें होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS which is equal to price of x price of y, same as कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कुछ भी अलग नहीं है. जैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वैसे ही प्रोड्यूसर्स का भी इक्विलिब्रियम, मतलब जैसे कंज्यूमर की आईसी है वैसे ही प्रोड्यूसर्स की भी आईसी होती है, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी अलग नहीं. खाली जहां जहां पे मैं कंज्यूमर बोलता हूं मैं वहां वहां पे प्रोड्यूसर बोलता हूं, दैट्स इट. ठीक है, जिनको पता है ये लिख लेना. प्रोड्यूसर इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन MRTS is x and y is equal to price of x upon price of y. ठीक है, आगे the point where the budget line is tangent to an IC, budget line is tangent to an IC. ठीक है, देखते हैं. budget line is a tangent to IC. Equal amounts of goods gives equal satisfaction, no. Ratio of the prices of the two goods is equal to MRS, yes. Price of x upon price of y is equal to marginal rate of substitution. Prices of two goods are equal, no. B. Maximization of the total utility. Total utility को maximize करना is an assumption of consumer, right? Is an assumption of a consumer in an analysis that is indifference curve. हम indifference curve में भी consumer का satisfaction maximum करते हैं. यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, हम हर में देखते हैं कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो. ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी इज एन अजम्पशन ऑफ ए कंज्यूमर इन द एनालिसिस. अच्छा एक सेकंड, लेट मी चेक अगेन. मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी इज अजम्पशन ऑफ ए कंज्यूमर, is assumption of a consumer in an analysis that is indifference curve approach, demand analysis, utility analysis, all of the above. एक बार चेक करो रे कोई दो, ये कंफर्म नहीं मुझे, आई एम नॉट दैट डैम श्योर. कोई क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं, मतलब ठीक है, assumption है. इंडिफरेंस कर्व में हम ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो, मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल. बजट लाइन इज अ गिव्स कंस्ट्रेंट. यूटिलिटी एनालिसिस में भी हम कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करते हैं. तो ए एंड सी आर करेक्ट, मतलब मेरा आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 398. A consumer is in equilibrium at a point of tangency of his IC and the price line because IC and price line because he cannot, right? आंसर डी बोल रहे बच्चे, बराबर है, वो डी होगा. ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. देखो जब भी आपको आंसर नहीं आता है ना, बाकी आंसर ढूंढो, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर द आंसर डी. यू आर नो अदर ऑप्शन. ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम at a point of tangency of IC and the price line because he cannot go below, he cannot go beyond, he cannot go along, none of the above. He cannot go below, he cannot go beyond, he cannot go along, and none of the above. ये आपकी आईसी है, ये आपकी बजट लाइन है. वो नीचे जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, राइट, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा. ही कैनॉट गो बिलो, ही कैनॉट गो बियॉन्ड, इसके आगे नहीं जा सकता बिकॉज इट इज आउट ऑफ हिज बजट. ही कैनॉट गो अलोंग, वो ही कैनॉट गो अलोंग, none of the above. Consumer is in equilibrium at a point of tangency of his IC and the price line because he cannot go below. Yes, he cannot go below क्योंकि ये below जाएगा तो that is not affordable, वो उसके बजट से बाहर जाएगा. He cannot go beyond, बराबर है, he cannot go beyond because वो बजट के बाहर रहेगा. He cannot go along, cannot go along. कोई कंफर्म करेगा क्या आंसर क्या है प्लीज. आप लोग सर आपको पता नहीं क्या,
ठीक है, सम क्वेश्चंस आर वेरी मतलब उनका इंटरप्रिटेशन वगैरह बहुत अलग रहता है. आंसर इज बी. क्या क्या लिखा है उन्होंने? ही कैनॉट गो बियॉन्ड. ये देखो, ही कैनॉट गो बिलो. अगर वो नीचे जाता है तो वैसे भी देखा जाए नीचे जाएगा तो आउट ऑफ बजट ही हो जाएगा. ही कैनॉट बियॉन्ड तो नहीं जाएगा बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ही कैनॉट गो अलोंग, उन्होंने बी आंसर दिया है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर यूटिलिटी टू बी मैक्सिमम? एमआरएस, एमयू अपॉन यस, ये तो करेक्ट है. इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है. कॉन्वेक्सिटी ऑफ आईसी नहीं. फर्स्ट इज फॉर्मूला. कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 400. द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट. सिंस इस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम में, बिकॉज एमआरएस, ये एमआरएस है, ये एमआरएस है. सॉरी, वो कुछ तो गलत हुआ है टाइप करते टाइम. हाँ, एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई. स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ your IC. In a situation where MRS is greater than this, ये वाले पॉइंट, यहाँ पे स्लोप ऑफ IC is more than slope of price line, the consumer will react by purchasing more of X and buying less of Y. Reducing the consumption of X, no. Increasing the consumption of Y, no. Increasing the consumption of X. आप इस पॉइंट पे हो. स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ प्राइस लाइन. यहां पे दोनों स्लोप सेम है. इसके ऊपर बजट लाइन का स्लोप ज्यादा रहेगा, इसके नीचे सॉरी, इसके ऊपर आईसी का स्लोप ज्यादा रहेगा. इसके ऊपर आईसी स्लोप इज ग्रेटर देन बजट लाइन स्लोप. इसके नीचे आईसी स्लोप लेस रहेगा देन बजट लाइन स्लोप. बिकॉज हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं आईसी का स्लोप कम होते जाता है, तो ये इससे ज्यादा यहाँ पे स्लोप रहेगा और इससे कम यहाँ पे स्लोप रहेगा. सो हम स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन. हम इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो हमें नीचे आना होगा. सो आई हैव टू बाय मोर ऑफ एक्स. एग्जैक्टली उल्टा क्वेश्चन है. व्हेन स्लोप ऑफ आईसी इज लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, मतलब इस पोर्शन पे हो, नीचे वाले पोर्शन पे हो, यहाँ पे टू बी इन इक्विलिब्रियम आपको ऊपर जाना होगा. मींस यू हैव टू बाय मोर ऑफ y एंड लेस ऑफ x. गुड, y शुड इंक्रीज. ठीक है, आगे. एट इन ए सिचुएशन, द सिचुएशन ऑफ ए कंज्यूमर इज बेटर व्हेन. वो बेटर कब रहता है? व्हेन ही इज इन इक्विलिब्रियम. ही इज अ बेटर व्हेन ही इज इन इक्विलिब्रियम. 404 एंड 405 देखते हैं क्या लिखा है. ए कंज्यूमर वांट्स टू बाय. दो तीन ही क्वेश्चन बाकी है. कितने क्वेश्चंस हैं बिफोर वी एक्चुअली, ये सप्लाई के पहले खत्म. मुझे आई एम नॉट गोना टेक द क्वेश्चंस ऑफ सप्लाई. आप घर पे करो, जो अलग है ना वो मैं लेने वाला हूं. ठीक है, आगे. ए कंज्यूमर वांट्स टू बाय टू गुड्स एक्स एंड वाई. उसके पास इनकम 24 है. द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स इज 4 and 2 respectively. Which of the following bundle of the consumer would he able to buy? He would be able to buy. That should be within his income. So 4 units of X. X की price 4 है. 5 units of Y, 2 rupees. 16 plus 10. इसके लिए 26 रुपीज चाहिए. You have only 24. नहीं buy कर सकते. 2 units of X. 4 multiply by 4. Sorry. 2 units of X ना. 2 multiply by 4. 8 रुपए X के लेके लगेंगे. प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय Y की प्राइस 2 है, 14. 8 प्लस 14, 8 प्लस 14 22. इसके लिए 22 लगेंगे. यू आर 24. सो ये भी नहीं चलेगा. 3 यूनिट्स ऑफ X. 3 मल्टीप्लाई बाय 4
plus 6 multiplied by 2. 12 plus 12, 24. You can spend 24. So answer is C. What will be the MRS when consumer is in equilibrium? Consumer is in equilibrium when MRS is equal to price of X upon price of Y. And they have given you price of X is 4, price of Y is 2. So answer is 2:1. 2:1. ठीक है, आगे. At the point of equilibrium on IC curve. At a point of equilibrium on IC curve. Point of equilibrium on IC curve. Slope of budget line is equal to slope of equilibrium पे क्या होता है? Slope of budget line is equal to slope of IC. In case of IC approach, an income effect means IC approach में income effect means this is 1, 2, 3 and ये आप टेंजेंसी है. इनकम इफेक्ट मींस आपकी बजट लाइन इनकम इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड जाएगी एंड आपका इक्विलिब्रियम राइटवर्ड शिफ्ट होगा. अगर इनकम कम होगी तो बजट लाइन अंदर आएगी एंड यू विल आपका इक्विलिब्रियम इनसाइड आ जाएगा. ए मूवमेंट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस नो, मूवमेंट टुवर्ड्स राइट कैन बी, a movement towards another indifference curve, this is correct, right? And movement along the indifference curve. Along the indifference curve, no. As income increases or decreases, you shift the IC. अगर आप reach हो गए तो now you can buy, you can go to the higher IC. Any consumer wants to be on highest IC, but वो possible IC होनी चाहिए, मतलब budget. Consumer is in equilibrium when he is on हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस का. पॉसिबल मतलब बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए वहां पे. ठीक है. सो इन केस ऑफ आईसी अप्रोच इनकम इफेक्ट मींस हम अदर आईसी पे जाते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आईसी अप्रोच. इट considers income effect and not substitution effect. It considers income effect and not substitution effect. इनकम चेंज होगी तो आईस राइट आपका इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा. आईसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिंस मोर एक्स एंड लेस वाई गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन. ठीक है. सो आई हैव सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, द कंज्यूमर्स बिहेवियर, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई इज इजी. Even I have shared the answers, तो आप वो करो because you all learned that in deep in your 11th, even अभी foundation में भी, so that will be easy. If you find some difficult questions, अगर आपको नहीं आते तो do ping me. जो अलग है, जो first time कर रहे हो या जो थोड़ा technical है, वो जानबूझ के मैंने question solve किए. Production and cost and market में I will solve each and every question because even if you are ISC student, फिर भी आपके लिए वो उतना easy नहीं रहेगा. रीजन इज वेरी सिंपल बिकॉज वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. ठीक है. सो वो तो ऑब्वियसली डीप में जाएंगे. सो कल हमारा 5:45 को लेक्चर होगा टू 7:15. विद इन 1.5 आवर वी विल बी कंप्लीटिंग द लास्ट यूनिट डिमांड फोरकास्टिंग टुमारो. मेरा जो भी था रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो सब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. जितने मुझे करने थे वो मैंने किया है. कल अपना यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा. आपके टेस्ट में डिमांड फोरकास्टिंग नहीं है. ठीक है. संडे को जो टेस्ट है 100 मार्क्स की. फिर मंडे से वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोडक्शन. उसके बाद हम कॉस्ट करेंगे. राइट. वो दोनों चैप्टर यूनिट 3 में आते हैं. ठीक है. सो हम प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. ठीक है. दैट इज आवर शेड्यूल. ठीक है. जिन बच्चों